super cyclone came in Odisha. Hmm? And this is a story of a boy. He was a small boy, about 14 years old, and he has lost his mother. And after the death of the mother, one day he decided that he will go to a friend's house. And in reality, he has gone. This is not a story, this is a real story. It was 18 kilometers away from his home. He went there, but by the night time, black clouds started gathering, heavy rain was there, and very speedy winds were there, which were, let's say, blowing at the speed of 350, isn't it? And by the night time, a heavy rainfall was there. The entire area was submerged in water. And in water, all the, let's say, muddy houses, the permanent, temporary houses, the weak and washed away. And what happened that his house, where he was living in the friend's house, also got damaged because a big tree fell down on it and it cracked. But let's say, luckily, it was good for them that it was a coconut tree, and the coconut tree has a number of, let's say, coconut, which they ate and drank the water of the coconut, and thus they survived in this way or that way. Now come that the crazed destruction means the destruction was caused as if some madman has destroyed it. Wrought means created by the cyclone and the surge of the ocean. The ocean level has, let's say, gone upwards, thus drowning, submerging the entire area and the entire building. Continue for the next 30 hours. Pani barsa band. The water level started going up, 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 and the entire area was covered or submerged and drowned into the water. As a result, many people died. All the, let's say, cattle died, and their dead bodies started, let's say, flowing here and there. And this boy, Prashant, was on the top of the roof at his friend's house. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. थोड़ा सा हवा की गति धीमी हुई है. To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. That already I have told you कि दोनों प्रशांत भी और ये दोस्त और दोस्त का पूरा परिवार इन लोग ऊपर चढ़ गए थे. नीचे तो एरिया पूरा पानी में, it was already drowned, isn't it? Prashant will never forget the shock he experienced at the first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. जब सुबह हुआ और ये छत पर से जब चारों तरफ का नजारा देखा ना, चारों तरफ कुछ था ही नहीं, कोई घर नहीं था, सारे घर डूब चुके थे, बह चुके थे, और चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष, trees were floating, and the floating of the, let's say, dead bodies of the animals and the human body, human beings and human body. And he was a small boy. For the first time in his life, he has seen this sort of, let's say, havoc or destruction created by the super cyclone. In the grey light of the early morning, a raging, deadly brown sheet of water everywhere, only water was there, covered everything as far as the eye could see. जहां तक आंख इसकी जा रही है, देख रहा, यह सिर्फ और सिर्फ देख रहा है कि भी काराकास है, डेड बॉडीज है, काराकास बोलते हैं डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स, एंड ह्यूमन कॉर्प्स, दोनों में हल्का फर्क है. कॉर्प्स, ह्यूमन के डेड बॉडी को कॉर्प्स बोलते हैं. ठीक है समीर, सबको नोट डाउन करो. और ब्लोटेड, सॉरी, एनिमल्स के बॉडी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कॉर्प्स. ठीक है. फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, जिधर देखोगे ना, हर तरफ, आगे पीछे, ईस्टर्न वेस्टर्न, ऑल द डायरेक्शन, human dead bodies and dead bodies, let's say, float, greenish was there all around. Even trees है,
भरा पड़ा हुआ है। ए रेजिंग डेडली two coconut trees had fallen on the roof of their houses. We have told ये अच्छा था। और कोई पेड़ नहीं गिरा, नारियल पेड़ गिरा, हालांकि बहुत मजबूत होता वो नारियल पेड़ दिस वॉज ए ब्लेसिंग। तो घर को भी तोड़ दिया लेकिन आशीर्वाद है, उसमें फल मिल गया, उसका पानी मिल गया, जिसको खा के नहीं के जगते हैं। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलो। आगे आने वाले दिनों में कई दिनों तक इन लोग तो ट्रैप है। पानी बरसना कम हो गया, हवा का स्पीड हो गया, लेकिन पूरा एरिया में तो पानी भरा हुआ, पानी भी खत्म होगा, 10-5 दिन लगेगा, तब नीचे धीरे धीरे बैठेगा। और तब तक क्या करना है, तब तक जो है और लोग इसमें फंसे पड़े हुए हैं। तो उस दरमियान ड्यूरिंग दैट वेरी टाइम फॉर 3 to 4 days ये लोग क्या किए हैं कि उसी नारियल को, सॉफ्ट था ना, नारियल को खा के खाना की तरह से, या अगर नारियल नहीं भी है उसमें तो उसमें उसका पानी है, पानी को पी के वे लोग जीवित रहे। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. ऊपर छत पर खुले में बैठे रहना, कम से कम जीवित तो है, पानी बरस रहा है, ऐसा नहीं कि पानी अचानक से it has completely, let's say, stopped. No, it was raining slowly and slowly, time and again. But he, with the family of his friends, was sitting on the rooftop. 24 hours, either it is day or noon or morning or evening. They froze in the cold. कंप्लीट नीचे वाला घर में तो पानी भर गया था, जितना गद्दा बिछावन ओढ़ने का कपड़ा वगैरह था, खाना सब डूब गया, और ये ठंड से सिकुड़ रहा। एंड इनसेसेंट रेन, इनसेसेंट बोलते हैं नॉन स्टॉप, विच कांट बी स्टॉप, जो रुकता नहीं है, लगातार पानी बरसते जा रहा। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और ये रोते जा रहा है। छोटा बच्चा, 13-14 साल, जैसे 9th के 10th के बच्चे होते हैं, बात सुनना ही बच्चा, परिवार कहाँ है और हम कैसे बचेंगे, आगे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, खाना कैसे मिलेगा। लेकिन ये जो रो रहा है पता नहीं चल रहा, बिकॉज कंटिन्यूअसली द वाटर वाज फॉलिंग, द रेन वाज लेट्स से गोइंग ऑन, सो नोबडी कैन नोटिस इवन प्रशांत दैट आई एम वीपिंग एंड टीयर्स वे आर coming down from my eyes. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Anybody, whether you are there or I am there, if this sort of situation is there, our mind goes to what, to let's say my family, उन लोग बचे हुए हैं कि नहीं, सरवाइव है कि नहीं, अगर सरवाइव है तो किस हाल में, इसका भी मिट्टी का मकान था, टूटा बहा, तो परिवार के पास इसका ध्यान लगा हुआ। समझ रहे हो सब? वाज ही टू बी bereaved once again, इसको लग रहा है कि थोड़े दिन पहले तो मम्मी का डेथ हुआ था, अब क्या सारे के सारे लोग हमारे पिछुड़ जाएंगे, परिवार के भाई बहन पिताजी जो भी है। 2 days later we seemed to प्रशांत like 2 years, 2 दिन बाद, जो कि प्रशांत को लगा कि 2 साल बीत गया। दिन भर बैठे रहना छत पे पानी में बिना खाए पिए। द रेन सीज्ड, 2 दिन बाद बारिश बंद हुई। हम लोग थे यहीं गए अपना, एंड द रेन, ये डीएवी मेडिकल नहीं था, डीएवी रोटरी था। रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रीड। जब पानी का बरसना बंद हो जाएगा ना, तो धीरे 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 पानी इधर उधर बह के कहीं ना कहीं नदी में, तालाब में, सागर में चला जाता है, तो वो पानी भी धीरे धीरे नीचे होने लगा, उसका लेवल कमने लगा। प्रशांत वाज डिटरमिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। वो समझ गया कि अब हम छोड़ेंगे नहीं, पानी कमते जा रहा है, हम किसी तरह से 18 किलोमीटर पानी में ही तैर के उसमें डूब कर घर जाएंगे और फैमिली को देखेंगे, माता पिता को देखेंगे। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस, वेरी डेंजरस सिचुएशन। उसमें सांप बिच्छा भी आ जाते हैं, जंगली जानवर भी रहते हैं, जगह जगह पहाड़, कहीं बहुत गड्ढा हो जाएगा। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टेप बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर। और प्रशांत जिसके यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ था, उसके माता पिता, उस फैमिली वाले बोले कि अभी 1-2 दिन और रुक जाओ, नहीं तो आगे कहीं प्रॉब्लम में पड़ जाओगे और रास्ता में कुछ हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ है नहीं कि कोई आदमी बचाने वाला है, चारों तरफ तो पानी है, तो रुक जाओ। But Prashant knew he had to go, but he had decided that no, whether I'm going to survive
be alive or dead, but I will go. And he has started going. पिक्स में दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, एक डंडा लिया, उसी के सहारे आगे पहले डंडा को पानी में घुसा देते हैं, देख लेते हैं कि ज्यादा गड्ढा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, और अगल बगल से ना जानवरों का, आदमियों का, तुम्हारा डेड बॉडीज रहेगा, बदबू रहेगा, गंदगी रहेगा, पेड़ आएगा, सबको क्रॉस करते हुए जाना। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। ही टोल्ड द फैमिली दैट नो, I have to go and see my family whether they are surviving or not surviving. He equipped himself with a long sturdy stick. कुछ नहीं लिया, एक खूब मजबूत लंबा डंडा लिया, छड़ी लिया, and then started on his 18-kilometer expedition back to his village. 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। 18 किलोमीटर का हो गया, गया टावर के पास से यहाँ 2 बार आना जाना, इतना हो जाता है, ठीक है। और उतना जाना है उसको, और भी रास्ता रोड नहीं है, पानी में डूबते जाना है, पता भी नहीं चलेगा कहाँ रोड है, किधर जाना है, दाहिने जाना है, बाएं जाना है। So he equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water. It was a journey he would never forget. और ऐसा जर्नी था ना, यात्रा जो कि आपने जीवन में ये कभी नहीं भूल पाएंगे। ये आज भी बचा है, सरवाइव कर रहा है, ये पहुंच गया है अपने घर में। और ये ऐसा यात्रा है जैसे कि कोई यात्रा हम लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो दूसरा चीज होता है ट्रेन से जा रहे हैं, उसको भी याद रखते हैं। ये यात्रा को तो ये कभी भूलने वाला नहीं, ज्यादा दूर तो है नहीं, यहाँ से चौक जाओ और चले आओ, इतना ही तो दूरी है, या यहाँ से नई गोदाम और वहां से आना, लेकिन ये दूरी बहुत लंबी दूरी हो गई। और ये बोलता है हम भूलेंगे नहीं। द swollen flood waters everywhere the water was there, सिर्फ इसका मुंडी बाहर रहता था। It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road. और पता करना चाहा ना तो वही डंडा से पता करता था, कहाँ रोड है, कहाँ गिट्टी है, कहाँ बालू है, कहाँ गड्ढा है, where the water was most shallow। और वहां पे जाता था जब डंडा ज्यादा नहीं डूबता था, तो इसका मतलब है कि इसमें पानी ज्यादा नहीं है, तो जाता था। सब समझ रहे हो बच्चों? अबाउट 20 अनुष्का 90 में है, जानवी है, कामरान, खुशी 9C में कौन है? कृष्णा है, लाव्यांशु है, लावी है, प्रिया बेटा सुन रहे हो? प्रिय रंजन, ऋतिक, उत्तम, वैभव, जो भी हो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, है ना? समीर सब रिप्लाई कर रहा है, वहां आवाज जा रही है, सब क्लियर कट? वहां से वॉल्यूम हाई कर देना पूरा लास्ट। समीर एट प्लेसेंट इट वाज वेस्ट, कहीं कहीं पर ना कमर तक का पानी था, डीप एंड प्रोग्रेस वाज स्लीप। वैसे में ये छोटा बच्चा है, लगातार पानी में है, 2-4 घंटा पानी में रहोगे तो ऐसे ही सर्दी लगने लगता है, आदमी गिर जाता है, कमजोर हो जाता है, खाना भी नहीं खाया, तो थोड़ा धीरे धीरे ये चलता था एकदम चींटी के जैसा। एंड एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड, फिर आगे चल के पता ही नहीं चलता था कि कहाँ रोड है, इधर देखो तो उधर देखो तो, एंड हैड टू स्विम, तो ये तैरना जानता था होगा और ये तैर के निकल जाता था। After some distance, he was relieved to find 2 friends of his uncle, who were also returning to their village. फिर काफी दूर गया ना, तो इसके दोस्त के 2 दोस्त मिल गए, चाचा के दोस्त मिल गए, तो इसको अच्छा लगा। 1 से अब 3 हो गए, और चाचा के दोस्त हैं तो एज में भी बड़े हैं, और उन लोग हमको क्या करेंगे, साथ चलेंगे, मदद करके सपोर्ट करेंगे। They decided to move ahead together, and that's why it was but natural that both of them decided, the friend of his uncle, 2 people and one he, that all together they will go to their village, their home. As they waded through the waters, पानी में चलना को बोलते हैं wade, the scenes they witnessed grew more and more macabre. भुताहा हो गया, जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे ना जो लोग डूबे थे उनका फूला हुआ बॉडी, जो जानवर डूबे थे उनका फूला हुआ बॉडी, they had to push away many human bodies, और सामने से अपना हाथ से आदमी का लाश को ना हटाना पड़ता था आगे जाने के लिए, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो या चिल्ड्रन हो। सारे लोग तो डूब ही गए थे, सबका तो पक्का मकान था नहीं, और 2 तल्ला मकान नहीं था। जो पक्का का मकान थे वे लोग बचे थे, नहीं तो लाखों लोग, हजारों लोग नहीं। उड़ीसा में यह हकीकत है, स्टोरी है नहीं। टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज नॉट a story, this is a real story which occurred in 1999, already read in October। दिसंबर में होता तो और प्रॉब्लम होता, वो सर्दी रहती वहां पर, लेकिन खैर उतना सर्दी नहीं था। एंड कराकास ऑफ डॉग्स, फूला फूला हुआ जो बॉडी रहता है ना, हाथ से उठाना, देखने में एक ऐसा लगता है, उसको छूना, टच करना घिन लगता है, लेकिन हटाना, हटा के आगे रास्ता बढ़ना। गोट्स एंड कैटल्स दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, और धीरे धीरे कहीं पर बकरी का, कहीं पर तुम्हारा गोट्स का, जानवर का, भैंस का डेड बॉडीज, और आगे बढ़ते गया। इन एवरी विलेज दैट दे पास, जहां जहां जिस गांव से जा रहे हैं,
They passed in every village. They passed. They could barely see a house standing. गांव में तो सारा मकान मिट्टी का मकान होता है शुरू से आज भी गांव में। अभी भी वहां पर 70% मकान है गरीब लोग का। अमीर जो कुछ लोग हैं हमारे तुम्हारे जैसा वो तोड़ के बनाए हैं, तो सारा जितना मकान था सब बह गया। पानी में रहते रहते तो खत्म हो जाता है। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट अ लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब जोर जोर से रोने लगा, समझ गया मेरा भी मिट्टी का मकान था, गांव आते आते पता चलेगा कि मेरे भी सारे लोग बह गए मर गए और मेरा घर तो गया ही। He was sure that his family could not have survived this catastrophe। इतनी बड़ी त्रासदी आई है, ट्रेजेडी आई है। हम जानता था कि मेरा परिवार भी, मेरा जब घर बहा तो सारे लोग भी बहे। मान लो ऊपर छप्पड़ होता था पहले, छपरेल का, उस पर भी चढ़ेंगे तो नीचे दीवार रहेगा तब ना, वो तो छप्पड़ वगैरह गया। तो इवेंचुअली प्रशांत रिच्ड हिज विलेज। फिर इवेंचुअली मतलब बोलते हैं लास्ट में, जैसे तैसे जैसे तैसे प्रशांत ना घर पहुंच गया, गांव पहुंच गया। गांव का नाम है, अंडरलाइन करो, समीर एनवन नॉन कालीकूड़ा। कालीकूड़ा है, आज भी है, अब तो बस गया फिर से। कालीकूड़ा गांव है, वही गांव में हो रहा गया। वहां पहुंचा अपने चाचा के दोस्त के साथ। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। जब अपने घर के पास गया ना, इसका ना पूरा हार्ट बॉडी ठंडा पड़ गया। Where their home once stood, there were only remnants of its roof। सिर्फ छप्पर जो भारी होता है, छप्पर देखे होगे गांव में, खपड़ैल और डंडे का बनता है बांस का, वो बचा हुआ था नीचे जमीन पर। चूंकि वो भारी होता है वो बहा नहीं, और बाकी पूरा घर स्वाहा हो चुका था, धस गया था। धसने के बाद बह गया होगा। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वेयर कॉट। कुछ न कुछ वहां पर, जैसे घर में मान लो जूता है, कोई छोटा मोटा टेबल है, अलमीरा है, जूता, वो कुछ कुछ बचा हुआ था, पहचान लिया। वो भी टूटा फूटा हुआ बचा हुआ है। मैंगल्ड लिखता है, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर। वो कुछ कुछ सामान, मतलब टेबल है तो ऊपर पेड़ पर जाके फंसा हुआ है, कोई जूता है, कोई छाता है, कोई घर का सामान है, वो टूटा फूटा हुआ उस समय पेड़ पे जाके अटका हुआ, जो पेड़ ऊपर, क्योंकि पानी बहा के ले गया। जस्ट विजिबल above the dark waters के ऊपर दिखाई पड़ रहा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। रेड क्रॉस उस समय भी था, रेड क्रॉस इस समय, रेड क्रॉस उसके पहले भी था, ठीक है। रेड क्रॉस का काम ही है भूकंप आने पर, बाढ़ आने पे, आग लगने पे जो लोग बिछड़ जाते हैं, बह जाते हैं, उनको एक जगह एकत्रित करके ना उनको शेल्टरिंग देते हैं, वहां पर ठहराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। और रेड क्रॉस का तो मकान गांव में हो या शहर में हो, पक्का कोई डिसाइड कर लिया, बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा था कि जहां कहीं भी है पता करते हैं, और रेड क्रॉस जाते हैं और पता करते हैं हमारे वहाँ पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव सब भाई बहन है या नहीं। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग। राइट ऑन द क्वेश्चन, हाउ डिड, राइट ऑन फास्ट वर्कशीट, how did Prashant manage to come to his village from his friend's house? Write down all of you. यहाँ हम लोग हिसाब लेंगे, कल या परसों से स्कूल खुल जाएगा। How did प्रशांत, भैया नमस्ते, how did Prashant manage to reach his village from his friend's house? How did Prashant manage to reach his village? थोड़ा हम भी लेंगे ब्रजेश सर, सूख गया। Difficulties he faced. Right on, all of you, good children. How did Prashant manage to reach his village from his friend's house? What difficulties he faced during his journey? Write down everything. The dead bodies, the trees, the disappearance of the road, the negative water, then the meeting of his, let's say, I mean, uncle's friend, and at last he reached his what? Village. The name of the village is Kalikuda, but he found that only the roof of the house was present there. The entire home was washed away, and no relative or his family was not there. So ultimately, what he did, he decided
he decided that he will go to Red Cross. Okay, अब चलते हैं रेड क्रॉस। ये इंटेलिजेंट बच्चा था, बहुत इंटेलिजेंट था, योद्धा जैसा काम किया है। वहां वो चला गया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. सबसे पहले वो देखा ना, उसकी नानी मिली। मैटरनल का मतलब हो गया ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर, वो अच्छी बात है। जब भी वहां पहुंचा ना 10-5 मिनट बाद देखा दादी है, चलो एक आदमी तो मिला। वीक वीक अंदर खाना तो वहां मिलेगा नहीं, लाख रेड क्रॉस में पहुंच जाओ, तुरंत का तुरंत कहाँ से मिलेगा? जब सारा एरिया डूब गया। जब कोई एक एरिया में आता है तब अलग बात है कि सारा एरिया बचा हुआ है, तो वहां से लाके सकते। यहाँ तो पूरा एरिया बचा हुआ है, तो एक तो नानी थी, एजेड होगी और काफी भूख से, और ये जो शौक लगा है कि सारा का सारा लोग डूब गए, मर गए, सी रस्ट हुई। उसको देखते इसके तरफ दौड़ के आई, हर हैंड्स आउट, हाथ फैलाए हुए थी, और हाथ फैला के इसको ना गले लगाई, हर आइज ब्रीमिंग। फिर भी इसको देख के, प्रशांत को देख के ना, इसका जो, उनका जो आंख था नानी का, मैटरनल ग्रैंड मदर का, वो चमक गया। इट वॉज ए मिरेकल, एक तरह से ये जादू है, मिरेकल है कि इसकी नानी मिल गई। दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड। नानी समझ रही थी कि प्रशांत मर गया होगा, जहां भी गया है, जिंदा भी होगा तो वापस कैसे आएगा। प्रशांत समझ गया था कि हमारे सारे परिवार, फिर भी दोनों एक दूसरे को जीवित देख के ना, दे बिकेम वेरी मच हैप्पी। दे स्टार्टेड, लेट्स से, आई मीन, दे एम्ब्रेस्ड ईच अदर, एक्सटेंडेड फैमिली गैदर। फिर धीरे धीरे हो गया। प्रशांत 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 जो गया हुआ था 18 किलोमीटर, वो आ गया है धीरे धीरे धीरे। भीड़ में ना इसके सारे लोग जीवित थे, और सारे के सारे इसके जो पापा थे, भाई बहन थे, चाचा वगैरह थे, सबके पास खबर पहुंचा, और ये सबसे जाके मिला। प्रशांत एंग्जियसली स्कैन्ड द मोटली battered, रुक जाए एक मिनट, her hands breathing, it was a miracle, they had long given him up for dead। पहले तो लोग समझ गए थे कि लोग डेड हो गए होंगे। and his extended family gathered, फिर तुरंत चारों तरफ बात फैल गई, परिवार एक तरफ एकत्रित हो गए, उस तरफ में सबको ना गले लगा लिए, सबको इसको एक तरह से पकड़ लिए, जकड़ लिए। अभी मिला कि चलो परिवार का एक सदस्य जीवित है। प्रशांत एंग्जियसली स्कैन्ड द मोटले बैटर्ड ग्रुप, और ये उत्सुकता पूर्वक ना भीड़ को देखता रह गया। और सारे के सारे जो भी लोग थे, इसके फैमिली के लोग थे या किसी गांव वाले थे, सब तो बेतरतीब थे, न किसी के पास खाना है, न कपड़ा है, 4-5 दिन हो गया है, और इतना बड़ा त्रासदी है कि पूरा घर मेरा बह गया। खाली घर गिर जाना अलग बात है, और घर बह गया, घर में पैसा है, कौड़ी है, अनाज है, खाना है, कपड़ा है, सबका सब खत्म।